हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I'm going to discuss the statutory update that has been released by the Institute for upcoming May 26 examinations. So, why is statutory update important or why is this relevant for us? Because this contains the amendments that have been introduced or basically that have been issued, which are applicable for your attempt but not included in the study material edition of the institute. So the July 25 edition of the study material is based on the provisions of income tax that are amended as per the Finance Act 25. So they have included all the amendments as per section Finance Act 25 and the significant circulars notifications issued up to July 2025. The relevant assessment year is AY 26-27. So हम लोग जो एग्जाम देने वाले हैं वो 26-27 assessment year के लिए रहेगी. The following significant notifications issued till 31st of October 25, but which are not covered in the July 25 edition, have been summarized here, right? So these are also relevant from your examination point of view. Now, बहुत सारे amendments नहीं हैं, hardly 2-3 circulars हैं. So we will just go one by one and understand what is the implication of those notifications or circulars. So the first is relating to salary. Salary limit prescribed for specified class of employees and gross total income limit prescribed for medical expenditure to be treated as exempt perquisite. एक एक करके चलते हैं. पहला, specified class of employees. So as we all know, जब हम लोग salary head पढ़ते हैं तो perquisites की taxability हमको बताई गई है and the perquisites can be categorized basis the taxability into 3 categories: perquisites that are exempt for all employees, perquisites that are taxable for all employees, and perquisites that are taxable only for specified employees. Okay, now specified employees की definition दी हुई है जिसमें एक condition हमको बोली जाती है that one who is a director of the company, second who has a substantial interest in the company, or any other employee whose income chargeable to tax exclusive of the value of benefits or amenities not provided by way of monetary payment exceeds the prescribed limit. तो कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी excluding the benefits or amenities which are not by way of monetary payment, इनको छोड़ करके जो सैलरी है अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाएंगे. अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाएंगे तो जो परक्विजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्सेबल है वो इनको टैक्सेबल रहेंगे. तो वहां पर लिमिट प्रिस्क्राइब करनी बाकी थी, वो इन्होंने प्रिस्क्राइब करी है. और क्या बोला गया है, रूल 3C हैज बीन इंसर्टेड और ये बोल दिया गया है कि लिमिट विल बी 4 लाख फॉर डिटरमाइनिंग स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, तो 4 लाख से ऊपर की अगर सैलरी लिमिट है तो वो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आ जाएगा. सिमिलरली देर इज वन परक्विजिट विच इज मेडिकल एक्सपेंडिचर. सो देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर जो कि टैक्सेबल नहीं होते हैं. जैसे कि अगर गवर्नमेंट और हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और एम्प्लॉयर आपका मेडिकल बेनिफिट बियर कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. देर आर सर्टन कंडीशंस विच आर गिवन. Now, one such case was there is provided there in the respect of treatment outside India. So, if there is any expenditure incurred by the employer on medical treatment of the employee or his member or family member outside India, उसका ट्रैवल स्टे एज वी ऑल डिस्कस्ड इन द टाइम ऑफ सिलेबस ऑल्सो कि जब आप बाहर ट्रीटमेंट करवाने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवल का खर्चा आएगा, वहां पर रहना पड़ेगा. और सिर्फ आपको नहीं रहना पड़ेगा, कोई ना कोई आपके साथ एक अटेंडेंट भी रहेगा. तो ट्रैवल एंड स्टे ऑफ द एम्प्लॉय या मेंबर जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट होना है उसका, एंड ट्रैवल एंड स्टे ऑफ वन अटेंडेंट, कोई ना कोई तो होना चाहिए अटेंडेंट पेशेंट के साथ जो गया हुआ है. ये सबका खर्चा अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्विजिट सब्जेक्ट टू दैट द एक्सपेंडिचर on medical treatment and stay abroad will be exempt only to the extent permitted by the RBI. जो RBI ने परमिट किया है उतना ही exempt होगा मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड का. एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल will be exempt if the employee's gross total income as computed before including the said expenditure does not exceed the prescribed amount. Again, तो यहाँ पर amount prescribe नहीं किया हुआ था. क्या बोला है उन्होंने, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विल बी 8 लाख, है ना. तो अगर ये लिमिट के ऊपर है इनकम तो फिर आपका टैक्सेबल होगा. अगर इस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं है, इनकम इसके विद इन है, तो देन दैट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल विल बिकम
एग्जेम्प्ट, है ना। तो ये दो लिमिट स्पेसिफाई करी हैं बस, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, कंसेप्चुअल कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो उन्होंने प्रोविजन में बोला था कि विल बी प्रिस्क्राइब्ड, वो अब उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है ना। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, आपको एनपीएस रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो यूपीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑप्शन अंडर द एनपीएस स्कीम, so that they may receive an assured payout after their retirement. Now, to align the tax treatment of the UPS, that is Unified Pension Scheme, with the NPS, Taxation Law Act has inserted subsection 3A and 6 in 80CC-D, जो हमारा NPS का डिडक्शन का सेक्शन होता है, एंड 12AA एंड 12AB इन सेक्शन 10, जो एग्जेम्प्ट की इनकम की बात होती है कि एनपीएस कब एग्जेम्प्ट होगा, कब टैक्सेबल होगा। सेक्शन 80CCD 3A, जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोवाइड्स that the amount standing to the credit of the assessee in his account, for which deduction has already been claimed, and any accretions received by the assessee, whole or in part, on account of his superannuation or voluntary retirement or retirement, shall be deemed to be the income of the assessee or his nominee, taxed in the year in which the amount is received. However, assessee shall not deem to have been received any amount if such amount is transferred to the pool corpus from individual corpus to account of his superannuation. तो अगर वो corpus में transfer हो जाता है, आप वैसा करते हो withdraw नहीं करके, तो फिर ये provision attract नहीं होगा, taxability नहीं आएगी. Exemption on payment of NPS trust to an assessee being a subscriber to the UPS. अगर NPS trust से कोई भी payment हुआ है to the assessee on voluntary retirement, to the extent it does not exceed 60%, then the amount shall be exempt. 60% तक का आपका amount क्या रहेगा, exempt रहेगा, over and above will be taxable. Now, exemption on lump sum amount received by assessee. Any sum received as a lump sum amount as per the clause 6 of paragraph 2 of the notification numbered FX 13/2024 dated 24th of January of the department, and assessee being a subscriber shall be exempt from tax. अब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? Being notification the Department of Financial Services, a lump sum payment will be allowed on superannuation at the rate of 10% of monthly emoluments for every completed 6 months of the qualifying service. तो ये तरीके से जो आप कैलकुलेट करोगे, और अगर इसके मतलब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपने कोई लमसम अमाउंट रिसीव किया है, दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, सिंपल सा एनपीएस में थोड़ा सा उन्होंने अमेंडमेंट किया है. लास्ट इज प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट. सो हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तब हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पैन एंड आधार लिंकिंग, और जिनके पैन और आधार लिंक्ड नहीं है वो पैन इनऑपरेटिव बोल दिए जाएंगे. Now there is a cross linking of this provision with the TDS provision. अगर आप किसी का टैक्स डिडक्ट कर रहे हो और आपके डिडक्टी का पैन आधार लिंक नहीं है तो पैन बिकम्स इनऑपरेटिव. देयरफॉर इफ यू आर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स, आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, as considering that the PAN is inoperative, there is an invalid PAN, so it is as good as no PAN case. नो पैन में जो हायर रेट लगता है वो यहाँ पर भी अप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, नाउ they have basically provided a provision that okay, you can get your PAN operative by paying a fees, late fees, and giving your intimating your PAN and Aadhaar. You can make your PAN and Aadhaar operative. बट जिनका इनऑपरेटिव हो चुका था और जिनके टीडीएस हो चुके, अब उनका क्या, आगे से तो ठीक है हमारा नहीं होगा, बट जो टीडीएस ऑलरेडी हो चुका है, हायर रेट से हो चुका है, क्या उसके लिए कोई रिलैक्सेशन दिया हुआ है? तो इन दिस सर्क्यूलर बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड रिलीफ टू द डिडक्टर कलेक्टर्स फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हायर टीडीएस, कि आपको ज्यादा रेट पे टीडीएस नहीं करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 206AA और 06CC. CC is TCS, AA is TDS in the cases where amount is credited from April 2024 to July 2025. अप्रैल 2024 से लेके जुलाई 2025 के बीच में अगर आपने पेमेंट किया है सामने वाले को, जिसका पैन आधार लिंक तब तो नहीं था जब आपने पेमेंट किया या बुक्स में एंट्री अकाउंट फॉर करी, या तो पे किया या तो क्रेडिट किया अमाउंट, तो वो तब तो लिंक्ड नहीं था. लेकिन अगर उसने सितंबर के पहले लिंक करवा लिया था, 30th of September के पहले, फॉर द पीरियड अप्रैल 24 टू
जुलाई 2025, देन आपको हायर रेट पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर शॉर्ट डिडक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएगा, कोई फेलियर टू डिडक्ट करेक्टली नहीं आएगा। एंड सेकेंड इज, अगर इसके बाद का ट्रांजेक्शन है तो अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्या हो रहा था, वो हर थोड़े थोड़े दिनों में एक नया सर्कुलर लेके आ रहे थे कि इस तारीख तक लिंक कर दो तो हायर रेट नहीं लगेगा, इस लाइन तारीख तक लिंक कर दो हायर रेट नहीं लगेगा। अब उन्होंने ये ब्लैंकेट प्रोविजन ला दिया, एक ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी बता दी कि वेयर द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड आफ्टर अगस्त 2025, जुलाई तक तो बता दिया उन्होंने कि जुलाई तक के पेमेंट्स के लिए कट ऑफ इज 30th ऑफ सितंबर, उसके अंदर लिंक हो गया तो फिर आपको हायर रेट नहीं लगेगा। पर आगे से मतलब इवन टुडे अगर किसी का पैन आधार लिंक्ड नहीं था एज द टाइम ऑफ डिडक्शन, बट ही हैज लिंक्ड इट within 2 months from the end of the month in which the amount is paid or credited, then again 206AA or CCC will not come into picture. तो suppose आपने किसी को कोई पेमेंट किया है इन लेट से दिसंबर 2025 एंड उस बंदे का पैन आधार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिंक्ड नहीं था, तो आइडियली तो आपको क्या करना पड़ेगा, हायर रेट से टीडीएस करना पड़ेगा। बट ये रिलैक्सेशन क्या बोलता है कि ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पैन आधार लिंक्ड नहीं था, लेकिन अगर विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड, तो यहां से मतलब दिसंबर एंड से 2 महीना यानी जनवरी और फेब्रवरी, अगर फेब्रवरी 2026 तक सामने वाले ने पैन आधार लिंक कर लिया, पैन ऑपरेटिव बनवा लिया, तो फिर हायर प्रोविजन 206AA आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। सो दिस इज हाउ यू विल चेक henceforth, the assessee has to check whether the पैन आधार इज लिंक्ड। अगर लिंक नहीं है तो ये कंसिडरेबल टाइम दिया है कि चलो अब लिंक करा लो, और फिर अगर लिंक हो जाता है तो हायर रेट नहीं एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हायर रेट से विथहोल्डिंग करना पड़ेगी, है ना। सो दीज आर द प्रोविजंस दैट आर अपडेटेड आफ्टर द स्टडी मटेरियल एडिशन एंड हेंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। मोस्टली तो आपको टीडीएस वाले पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। डेट्स पे ध्यान रखना है एग्जाम में, जो डेट अगर दी हुई है जुलाई तक की, तो आपको सितंबर का कट ऑफ देखना है, और बाद में 2 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच अमाउंट वाज पेड और क्रेडिटेड। तो इस पे क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं कि कौन से रेट से विथहोल्डिंग करनी पड़ेगी, हायर रेट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो गो थ्रू दीज सर्कुलर्स, रीड इट वंस ऑन योर ओन, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज फील फ्री टू डिस्कस। In the second part, I am going to discuss the RTP objectives that are released from the institute for the examination perspective. Okay, चल, all the very best.